میں شاید ابتدا یوں کروں، سردار صاحب نے بھی تھوڑی بہت مدد کی تھی کہ کہا کچھ گیا اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کسی گھر میں دعوت ہے اور اس کے بعد ایک مختصر سے محفل میں شاید کچھ باتیں کرنی ہوں۔ یہاں تو میرے خیال میں اس کو جلسہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور پھر شام ہو چلا ہے، آج کل دین کا بھی غلبہ ہے، نماز پڑھنے کی بھی خیال ہے۔ میرے خیال میں جذباتی باتیں نہیں ہوئی، لوگوں کو لطف نہیں آ رہا، اور میں خود بھی آج کل، میرے ساتھی بھی بہت عرصے سے تقریر شاید نہیں کرتے، میں خود فکری طور پہ سمجھتا ہوں کہ تقریروں کا کچھ لوگ کر سکتے ہیں، میں آج کل نہیں کر سکتا یا نہیں جانتا ہوں۔ تو کاش کچھ لکھے ہوتے کہ آخر میں مجھ جیسے پرانے گویے کو بھی چھوڑیں گے نہیں، شاید اٹھائیں گے، گلا کام کرے یا نہ کرے، تو کاش لکھے ہوتے۔ اب یہاں جو باتیں ہوئی ہیں یاد کرنے کی کوشش کروں، انہیں وہ نقطے ان میں اضافہ کر سکتا ہوں یا شریک کر سکتا ہوں۔ میرا اپنا ابھی بھی فرمایا کہ اٹھو، میرے خیال میں جو باتیں اکثر زندگی میں روزمرہ میں محسوس کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور اتنے بڑے محفل کو قائل کرنا آسان نہیں ہے۔ میری اپنی رائے ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے گروہوں میں لوگ سبق دیں اور سیکھیں۔ یہ جلسے جلوس کا طریقہ عمومی طور پہ جذبات، کبھی یہ تھے کہ جذبات اکساتے تھے، وہ کچھ سلسلہ ان کا عرصہ چلتے تھے، آج کل جذبات بہت جلد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے کچھ قبائلی خلوص، سادگیاں، پختگیاں نہیں، سادگیاں تھی، اب وہ بھی نہیں رہے۔ اب یہاں غلبہ زیادہ پیسے کا ہے، وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے طرف، ماحول سماج کے طرف، تو پیسے سے اور ڈنڈے سے زیادہ متاثر ہیں۔ پرانے روایت قبائلی ہوں، چھوٹے وہ خاندانوں کے ہیں، وہ نہیں رہے۔ آپ جتنی بات کریں جوش اور جذبہ، غیرت وغیرہ کے، آج غیرت وہاں ٹوٹتا ہے جہاں زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری باتیں، میرے خیال میں کہ گروہوں میں اگر ہم بیٹھ کے، عالموں نے، بزرگوں نے تحقیق کی ہے، قومی حقوق، محنت کشوں کے حقوق، فرد کے، عورتوں وغیرہ وغیرہ، اس پہ بیٹھے ایک دوسرے کو سمجھائیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ وہ سادہ ماحول کے لوگ، جب کبھی خیال تھا ان کو اکسا کے عارضی طور پہ، میں غلط یا صحیح، ڈیلے ایکشن کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غاصب کے غلبے کا کچھ ڈیلے کیا جائے، لیکن واقعات ایسے ہوئے کہ ہم نے ڈیلے کیے، لیکن اس کے لیے آئندہ مسلسل لمبے عرصے کی جد و جہد کی تیاری نہیں کی۔ وہ قبائلی یا پسماندہ ماحول کا وقتی لڑائی، یا میں اس طرح گزارش کروں کہ مختلف قبائلوں کے کچھ تاریخی واقعہ ہیں۔ ہمارے مری کے بھی ایک قلعہ ہے گنبد کا، خدا جانے غلط یا صحیح اس کا ذکر کروں، مریوں نے تیاری کی کہ گنبد کے قلعے پہ انگریزوں کے حملہ کریں۔ چھوٹے سے ہی قلعہ ہے، تھوڑی سی اس میں نفری تھی، انہوں نے خدا جانے 8 میل 10 میل سے کہیں 10 میل دور جو جمع ہوئے، اب رات ہے۔ یہ ہماری فوجی تدبیر ہے، حکمت عملی ہے، ہماری دانائی اسے کہیں۔ وہاں سے جو بھاگے ہیں، دوڑے ہیں،
تو وہ سنا ہے کہ انگریزوں کے جو کارندہ تھے یہاں ہندوستانی سپاہی زیادہ، کہا آج گیدڑ زیادہ بول رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کچھ دیر تو وہ نہیں سمجھے کہ یہ شر و شور کس چیز کا ہے، پھر پتا چلا اب 8-10 میل سے دوڑ رہے ہیں، شور قریب آئے تو کہا یہ تو کوئی لشکر انسان ہے، خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ بہرحال انہوں نے اندازہ لگا کوئی قبائلی لشکر شاید جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہاں مقصد کیا ہونی چاہیے تھی میرے نقطۂ نظر سے، غلط یا صحیح میں کوئی ایسا ماہر نہیں، کہ رات کے اندھیرے کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ لے رہے ہیں؟ کم سے کم یہ فائدہ ہوتا کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ناگمان آ کے ٹوٹ پڑے قلعے پہ، نہیں 10 میل سے 12 میل سے دوڑتے آ رہے ہیں، کیونکہ فکر قبائلی ہے، وہاں دکھانا کیا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ دلیر ہوں۔ یہاں اپنے بٹن کھول کے یا تڑی ہم کہتے ہیں وہ کھول کے کوشش یہ کہ میں دوسرے سے آگے جاؤں، اور وہ قلعے تک پہنچتے پہنچتے تو شاید ان کا دم پھول گیا ہوگا، شور مچا رہے ہیں، ایک طرف تھکا رہے ہیں اپنے کو، دوسرے طرف رات کی اندھیری سے فائدہ اٹھا نہیں رہے، تیسرے گنتے جائیں جی۔ بہرحال وہ ساری رات بھر مرتے گئے، جیسے وہ دیوار پہ آئے وہ ماریں جیسے مکھی کو گراتے۔ صبح کی روشنی میں دیکھا کہ اب روشنی، اب چلو اندھیرا تو گیا، اب روشنی میں واپس جائیں گے کیونکہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ بھئی تمہیں اگر دیکھ نہیں رہے تھے، سن رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، تو کیا لڑائی لڑی آپ نے؟ تو آج بھی خیال ہے کہ صرف یہ کہنا ممکن ہے، بے ربط عرصے سے تقریریں نہیں کی ہیں، جب کرتا تھا بھی کہہ نہیں سکتا، وہ کسی نے کہا بھائی جوانی میں بھی کیا کمال کیا تھا، تب بھی کوئی ایسے شاہکار نہیں ہوتے تھے، لیکن اب اور بھی زیادہ کہ صاحب تقریر نہیں، اس میں کبھی کہاں سے کہاں وہ قدم یا چلنگ ربط نہ ہو۔ تو گزارش یہ کہ آج بھی ہم اگر کوشش کریں کہ کس قسم کے لوگ اگر قبائل ہیں یا جذباتی ہیں، یہ اس وقت ہاں کہیں گے، لیکن ایک شعور رکھنے، سمجھ رکھنے والے سیاسی ورکر چھوٹے سطح کے ہیں، اگر کہیں چھوٹے ساتھی ہوں یا بڑے ساتھی ہوں، یہ لفظ ذرا تضاد جیسی ہے کہ چھوٹے بڑے، ہر سطح کی ذمہ داری والے، کم از کم میرے خیال میں ہمارے دشمن کے اگر ہمارے 100 آدمی صحیح، اس کے لاکھوں ہیں، ہمارے آدمی کا سیاسی طور پہ یا دانستگی کے جہاں تک تعلق ہے، اس کے کارندوں سے زیادہ باشعور سمجھدار ہو، پھر 100 صحیح 200 صحیح۔ لیکن ہمارا اگر یہ کہے کہ جدید امریکن فوج پہ ریڈیڈین اٹیک جو ہے اسے شکست دے سکتی ہے، میرے خیال میں مشکل ہے۔ اس وقت کے بھی امریکن سفید تھے، ان پہ ریڈ انڈین غالب نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بھی ہم لوگوں کو جذبات سے، سردار صاحب نے میرے خیال کے مطابق کچھ حقیقت ہے لیکن کچھ پیار و محبت سے، لحاظ سے وہ ذکر کیا، اب نہ جانے کہ احتیاط کا تقاضا ہے یا شدتیں اتنا جمع ہو گئی ہیں کہ کبھی کبھی کچھ تلخ لفظوں میں بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہاں کچھ مسئلے اٹھائے گئے، یعنی ایک یہ کہ راضی نامے یا صلح صفائی، میرے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ صلح صفائی کس لیے، کس مقصد کے لیے؟ اس کو پاپولرائز کیا جا رہا ہے، یعنی پسندیدہ ایک ایشو بلوچوں میں بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے، اپنے سے بھی یہ سوال کیا کہ آیا ایک قوم، دوست فرد کو اگر یوں گھیرا جائے اور کہا جائے کہ یہ جھگڑے جو ہیں ان کا فیصلہ آپ کرائیں، خدائی خدمت ہے، قبائلی خدمت ہے، قومی خدمت ہے، اسلامی خدمت ہے، تعلیم یافتوں کا کوئی خیال ہے، روایتی فکر کا کوئی خدمت ہے، یا کچھ شہری پیسے والے
कुछ पढ़े लिखे उनकी जहन, या हम ये सवाल कर सकते हैं उनसे कि भाई आप जो इसको इतना दोहरा रहे हैं, जगह जगह से बहस कर सकते हैं इस पे? बलूच कौम का सबसे बड़ा मसला, जैसे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे अहम मसला ये है, अगर ये हो तो बलूच में इत्तेहाद आएगा, या वो लोग जो लड़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा कौम दोस्त लोग हैं, इनको मुत्तहिद, इनका अमन करवाया जाए, या जो भी हैं इनको मुत्तहिद करें, तो ये किस लश्कर के सिपाही बनेंगे? खुदा के काम के लश्कर के, कब किसी खास कबीले के लश्कर के, या ये बलूच कौम के लश्कर के, या इस्लाम का लश्कर, या कहीं पाकिस्तानी तो बैठ के नहीं इस तरह की चीज को पीछे से उठा के हवा लगा के उसको पंखे जैसे लोगों में फैला रहे हैं, और लोग भी ये समझते हैं कि वाकई हमारा अपने जहन से ये उठी हुई एक ख्वाहिश और जरूरत है, या ये समझते हैं ये इंटेलेक्चुअली यानी दानिश्वरी का तकाजा, ये बात हम करेंगे तो बहुत गहरे दानिश का मुजाहिरा कर रहे हैं, अक्लमंदी का, दूरअंदेशी का, बारीक बीनी का। क्या चीज है जी? कौन लोग हैं? या कुछ साथियों ने ये भी कहा प्यार से और लिहाज से कि ये हमारा और पश्तूनों का वतन है, उनकी जमीन हमारी जमीन। मैं समझता हूँ ये सही नहीं है जी। पश्तून में तालीम ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, उन अफगानों को छोड़ के। आजकल ये समझा जाता है ज्यादा जो होशियार है, चालाक है, तालीम याफ्ता है, उसे हक है। जैसे पाकिस्तानी कभी कहते थे बलूचिस्तान आजाद होगा तो ये तो जहाज भी नहीं उड़ा सकते, जिसके माने मैं जहाज उड़ा सकता हूं तो फिर मुझे उसके लिए कोई खास मुआवजा दूसरे से, चाहे अपने मंशा के दाम लूं, भी मुझे हक है। तो मैं एक वाक्य आपसे जिक्र करता हूं, ये 50s अर्ली 50s का है। वहां पिकेडिली आपने सुना होगा, साथियों ने या किसी ने नहीं सुना, कि आजादी तकरीर, वहां गाली गलोच लड़ाई मत करो, लेकिन तकरीर जो भी उठ के कर सकता है लंदन में। तो मैं भी जवानी में वहां फिरा करता था, बातें सुनने के लोग, या ऐसे हवाखोरी कहे, आवारागर्दी कहे। तो वहां एक रोज कोई अफ्रीकन तकरीर कर रहा था, उसके बाद उसने अपने तहरीक की बातें की, तो एक सफेद फार्म उठा बाद में, वो गुस्से में, तैश में कहता है शुक्र नहीं करते तुम कि तुम आज बंदर होते, अगर हम ना आते तुम्हें इंसान बनाते। उसने ऐसे सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए, तुम्हें खाने का ढंग नहीं था, तुम्हें पहनने का नहीं था, तुम्हें पढ़ने का नहीं था, तुम्हें मजहब ये नहीं थे, वो नहीं थे, कुछ नहीं आता था। तो वो बैठा, दूसरा काला उठा, काला क्योंकि वो काला कहते हैं लफ्सी, वो उठा कहता है तुम क्यों भूल गए हो, हमारी बंदरी तो तुमको याद है, लेकिन तुम्हें अपनी जो रोमन एम्पायर फौजी आते थे यहाँ, फिर वो बादशाह को या अपने जर्नलों को कहता था कि हमारे बच्चे बीवी यहाँ भेजो मेहरबानी से, बजाय कई और मुतालिबात की। तो उन्होंने कहा क्या अंग्रेजों के पास औरतें नहीं है क्या? कहते हैं साहब आप इस मुल्क में आए तो इनकी औरतों के साथ अगर करीब जाएं, रात गुजारे, तो हमें अपने नाक बंद करके मुंह पीछे करके फिर गड़बड़ कर सकते हैं, वरना तो ये इस काबिल नहीं है, ये इंसान तो है नहीं, ये तो हैवान है, बदबू है, जुए हैं, जहां बाल नहीं होने चाहिए वहां है, जहां सफाई होनी चाहिए वहां नहीं है, वगैरह वगैरह, मुंह से बदबू आता है, जिस्म से बदबू आता है वगैरह। तो उसने कहा ये आया रोमन्स को भी अख्तियार है कि आज तक आका बने रहते, ये भी दलील है किसी के बालादस्ती का। तो यहाँ ये फिक्र पश्तून, कल परसों आ रहे थे वहां, तो एक जगह लिखा हुआ था बलूचिस्तान को तकसीम किया जाए। तो मैंने एक साथी को कहा कैसी ये मनफी सी बात है, अपना पश्तूनिस्तान मांगे भाई, आपके हमें पश्तूनिस्तान चाहिए, पश्तून वतन चाहिए, बलूचिस्तान तकसीम की बात क्या है? जहां से मांगे वो, हमारे यहाँ कहते हैं वो
کچھ انا ہے ہر ایک میں بھی شاید اس کا شکار ہوں، لیکن مثال کچھ ایسا ہے کہ انا کو مارنے کا ہے ذرا۔ ہمارے یہاں مثال ہے ایک، کہتے ہیں دست نہ پجی سیالہ جن بکالا۔ ہمارے یہاں اب اپنے کو بکال کہتے ہوئے بھی لطف نہیں آتا، لیکن کوئی اور مثال سوچا نہیں اس سے بہتر۔ ہمارے یہاں بکال بیچارے کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ سیال پر تو ہاتھ نہیں، غصہ نہیں۔ پھر ہمارے اپنے گاؤں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں بھی مثال ہے کہ زورا گندامن ظاہر میں گزور گندامن ظاہر نہ کفی، یعنی طاقتور کو دیکھتا ہوں تو مجھے غصہ نہیں آتا، کمزور پہ میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو آیا کیا بات ہے؟ بلوچستان کو تقسیم کرو یا یہ کہو کہ پاکستان کو قومیت و زبان، تہذیب و تاریخ وغیرہ جغرافیہ کے مطابق تقسیم کرو، یا صرف بلوچستان کو تقسیم کرو؟ اس سے پشتونستان کا مسئلہ حل ہوگا، یا پاکستان کو ان اصولوں کے تحت تقسیم یا بانٹا یا حد بندی کیا جائے؟ تو کیوں وہ جملہ نہیں آتا زیادہ؟ ابھی کچھ وجہ ہیں، ساتھیوں نے شاید اشارے کی ہیں، ایجنسیاں ہیں یا جو بھی ہیں، کہ کہیں اس میں بھی وہ پھر پنجابی کا ایک مثال، چونکہ کچھ سال وہاں بھی گزارے، غلامی تو گزارے ہیں، اب بھی کچھ پڑھنے کے بھی وہاں گزارے بدقسمتی سے، اس سے پیار نہیں بڑھا، انڈرسٹینڈنگ شاید نہیں بڑھی، اس سے کچھ نفرتیں بڑھی ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ جب جلاحہ کوئی شاید غریب ہے، یہ رنگساز ہیں کیا، کہ جب جلاحہ بنے نمازی اس میں بھی دغا بازی، تو کہیں اس میں بھی دغا بازی تو نہیں ہے کوئی؟ کہ بجائے ملک کو تقسیم کرو ایسے اکائیوں، تاریخی، سماجی، لسانی وغیرہ وغیرہ، بلوچستان کو تقسیم کرو۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو میں کچھ ساتھیوں سے کبھی کبھی ایسے کمزور عاجزانہ گزارشیں بھی کی ہیں۔ ایک وقت میں ایسی بات ہوئی تھی کہ یہاں میں نے کوئی آدھا جملہ استعمال کیا تھا یا پورا کہا میرے آدھے پہ کہ بلوچوں کی کوئی بات کی تھی، تو مجھے کچھ لوگوں نے گھیر لیا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، بلوچ وطن کی بات نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں نے صرف یہ کہا، کسی نے نام پوچھا تو میں نے کہا خدا، کسی مثال ہے خدا، اس نے کہا کافر تو خدا، کہتا ہے بھائی بخش بھی تو میرا حصہ سن لے، خدا بخش ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تو میں نے صرف بلوچ کی بات کی، آپ نے فوراً کہ یہ محدود کر رہا ہے اپنے کو، یہ بلوچوں کو محدود کر رہا ہے، بلوچستان کی بات نہیں کر۔ میں نے کہا وہ تو شاید بڑھا تھا میں کہ بلوچ اور بلوچستان، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ غیر واضح قسم کی قومیت، یہاں قومیت کا مسئلہ ہے یا محنت کش کا ہو، یہ غیر واضح مبہم ملا جلا جو ہے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب مخصوصیت کی طرف بلوچ کی وضاحت یا قوموں کی وضاحت مخصوص طریقے پہ کہ بلوچ کون ہے، بلوچ کیا ہے، بلوچ کے وطن کے مطلب کیا ہیں۔ کیونکہ آج جو بلوچستان ہے، پاکستان ہے، بلوچستان ہے، صوبے ہے، تو اس بلوچستان میں افغان بھی آ کے بس جاتا ہے، ایرانی بھی آتا ہے، سندھی بھی آتا ہے، پنجابی بھی آتا ہے۔ کچھ فکری حد بندی ہو، وضاحت ہو، پھر اس کی اظہار ہو، پھر اس پہ عمل بھی ہو۔ ہمیشہ آپ جو ایسی لمبی چوڑی بات ملاوٹ کی ہم کریں گے تو شاید کوئی نہیں سمجھتا، نفرت کی نہیں، بالادستی کی نہیں، وہ ناٹسی نیشنلزم اگریسو نہیں، لیکن ایک علم کے حیثیت سے، سائنس کے حیثیت سے بلوچ کی میرے خیال میں وضاحت ہونی چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے، آج کہتے ہیں کہ سب ہزارہ بھی ہمارا بھائی ہے، فلانا بھائی ہیں یا نہیں ہیں، انسان ہے، پشتون ہے، انسان ہے، رہتے یہاں۔ مجھے یقین نہیں ہے جو یہاں ہزارہ آ رہا ہے یا افغان آ رہا ہے وہ بلوچ کے ساتھ بلوچستان کا یا بلوچ تاریخ میں اپنے کو حصے دار بنا کے، وہ میرے خیال میں غاصب کے طریقے سے ہے۔
फायदा लेने के तरीके से। वो कल शायद इसमें कुछ लोगों में तुंदी तलखी भी आए, इन बहसों में तलखी आती है, वो लड़ाई झगड़े ना हो, फिर भी उससे ठंडे बहस के ये ईरान के जेर असर होंगे, शियायत के जेर असर होंगे। जो बड़े ताकत हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, वो बलोच के नफा नुकसान के साथ अपने को एक अकलियत कहें या बलोच समाज में शरीक हो के, मेरे ख्याल में मुश्किल है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये एक ख्याल है। मेरा ख्याल है इस वक्त मखसूसियत के तरफ जाना चाहिए कि भाई आप कौन है, मैं कौन हूं। भाई नहीं है, इंसान है, गवांडियां हैं। इंसानों की भी कुछ कायदे कानून का जिक्र करें, कौमों का भी जिक्र करें, कौमों की जबान और तारीख का, क्योंकि आज ईरान के भी प्लान्स हैं। यहां मेरे सुनने में है कि बलोच ने जमीन खरीदा है स्पेजन में, उसके कागज आज तक नहीं बन रहे हैं, पता नहीं कितने महीने। यहां कोई साहब, कुर्द साहब अगर होते तो मुमकिन है वो बेहतर बनाता, हमारे हमीद हाजी हमीद कुर्द। लेकिन हजारा जो आ रहे हैं ईरान से, रोजाना मेरे इतला ये 25 लोगों को वहां जमीनें दी जा रही हैं, वो खरीद रहे हैं, उनके कागज बन रहे हैं। इसके क्या माने हैं जी? क्वेटा में अब किसकी आबादी? क्वेटा जब अंग्रेज आया तो किसका था? आज क्वेटा किसका है? किसका निहाल खाना बन रहा है? 25 लाख है या 9 लाख है या 7 लाख है? कितने मुर्दा जबान में हम उसकी बात करते हैं। इतने अफगान आए हुए हैं। हमारे अगर 7,000, आज भी अगर हमारे 7 आदमी, मेरे ख्याल में बलोच कुछ लाख में जाएं तो 7 दिन के अंदर आप देखेंगे, अगर कानों के साथ गए, कान और दुम भी गायब होके वापस आएंगे। क्यों इस तरह लेपापोती करते हैं कि ये अजाब जो है और भी ज्यादा हो? अगर कुछ लोग गासिब हैं, जोरावर हैं, गुस्सा उनको आना है, तो उसको अभी से क्यों ना आजमाते जाए कि भाई हम हक की बात कर रहे हैं, अपनी हक बैठ के दलील से। कुछ वोट हमें चाहिए लोगों के, अपने वोटों के लिए भी हम लोगों को इस तरह कबूल करने की तरफ बात करते हैं कि नहीं। बलोच का हद ये है, तारीखी, साइंसी, इल्मी हैसियत से बलोच की वजाहत ये है, पश्तून की ये है, हजारा की ये है। अगर बातें तय होती हैं तो वो बैठे तय करें। ये नहीं कि आज सरियाब भी, आज किरानी भी, आज स्पेजन भी, ये सब बाहर के। हमने देखे हैं दुनिया में या सुना है कहीं कि फलस्तीन का क्या हशर बना। जूश 5,000 साल 3,000 साल पहले होगा, अब किस तरह खरीदते फिर ताकतों का भी मदद हुआ। आज फलस्तीन की हालत क्या है? वो दूर है, कराची की हालत क्या है? सिंध, ये महाजिर, इन महाजिरों से तो बेबस हालत में आए थे, बहुत कमजोर हालत में आए थे। आज कराची या सिंध की हसर क्या हो रही है? ये अजाब हम अपने लिए भी, हमारे आने वाले आइंदा जो है दिन, वो इससे भी ज्यादा तल्ख हो, कम से कम हक के वजह से तल्ख हो तो बात है, इस तरह मिलावट की वजह से तल्ख ना हो। हाँ, हमारा भाई है जी, मजलूम है जी, फलाना है जी, हमें वोट देगा जनाब, 7 लाख है सिर्फ, आपका भी वतन है, मेरा भी वतन है। मेरे ख्याल में ये हम अजाब को और भी ज्यादा, वो कहते हैं इनकरेज या हौसला अफजाई या बढ़ावा दे रहे हैं। तो तल्ख बातें नहीं, लड़ाई की नहीं, मेरे ख्याल में कुछ सच्चाई की बातें आप जानना चाहते हैं या जानते हैं। मेरे ख्याल में जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान और जो अफगानिस्तान के सिलसिले में यहाँ जोर आजमाइयाँ होंगी, खित्ते में मुख्तलिफ कुव्वतें काम कर रहे हैं, उससे या तो आप नावाकिफ होंगे, या अगर वाकिफ है तो फिर आप दाना होंगे। मैं शायद नादान हूं।
कि उनका इजहार जिक्र ऐसे ला रहा हूं। इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है और जी चाहता है कहने को, फिर सोचता हूं कि मुमकिन है महफिल के मिजाज के कहीं खिलाफ ज्यादा जाता हो। भाई तुम ही तो सच बोलने वाले या झूठ बोलने वाले, दीवानगी तुम्हारे हिस्से में सिर्फ आई है। कभी ये ख्याल आता है कि दीवानगी के इंतहा न जाओ शायद, लेकिन जरूरत ये है कि अगर इसको दीवानगी कहा जाए, ये मेरे ख्याल में कदम कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। चूंकि मसाइल बहुत सारे हैं, अगर इसको छोड़ के अब बलूचों तक महदूद, जो भी बलूची बोलने वाला उठता है आज नौकरी के लिए भी, वो कहता है बलूचियत की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं, और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो बलूचों के हक नहीं मिले, अगर नौकरी मिल गई तो बलूचों को हक मिल गया। अरे बलूचियत के मतलब ये है। सरदार साहब ने जिक्र किया, उससे कुछ हौसला बढ़ा, क्योंकि बात पहले आ चुका है, एक सादा आदमी कहे या दलेर आदमी कहे या सच बोलने वाला, कुछ आदतें जवानी से। अब मक्सी साहब घर में तो बैठ के फरियाद करते हैं कि जो भी अपनी बेबसी या नाजायजी, आया लुत्फ नहीं उठा रहे हैं उस बेबसी की, शरीक नहीं है उसमें, आया हम इस तरह सब शरीक नहीं है, हमारे सियासतों के इत्तेहाद आपस में कहीं हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग से वर्किंग रिश्ते हमारे हैं, मैं अलायंस उसे नहीं कह सकूंगा, वर्किंग रिश्ते हैं, आपस में इत्तेहाद। बलूच के हक आया पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशंस में होगा या आपस में? कौमी हक एक पार्टी या एक कुछ कबीले नहीं ले सकते। मरी का तेल मरी नहीं बचा सकता। अगर मरी के तेल को बलोचों का तेल समझ के बचाने की कोशिश करें तो ताकत के दायरे वसी होंगे, मरी नहीं। तो अगर कोई नेशनलिस्ट हो तो उसे खामखा मरीयत से निकलने की जरूरत पड़ेगी कि भाई इस तेल को बचाने के लिए, हाँ सौदा करूंगा इसका तो अलग बात है, सौदा मुझे कीमत तो नहीं मिलेगा, मुझे कुछ रिश्वत, वो पसमानदा जो है कंदूरी के हमारे यहाँ कहते दस्तरखान के बचे हुए मुझको फेंक देगा, लेकिन मुझे मालिक कभी नहीं समझेगा। मालिक की अगर हासिल हो सकती है तो फिर इसमें बलोच लश्कर की जरूरत है, फिक्री अमली हर किस्म की लश्कर की जरूरत है, लामहला। अब यहाँ एक तरफ तो बलोच मेरे ख्याल में हर एक काम जो कर रहा है कि मक्सी तो मक्सियों के लिए करेगा, मरी के लिए करेगा, यहाँ उसको हिमायत मिलती है एजेंसीज के कि वो मरीयत को मरीयत के दायरे में रखे, या मरीयत को भी मसलन गज़ेन उसे कहां तक रखे, कोलू तक भी बढ़ाने की कोशिश न करे, क्योंकि आज के आका को कोलू कहां सारा मरी पसंद नहीं है कि एक के कहने पे हाँ करे या ना करे, वहां उसको भी बांटना चाहता है। तो यहाँ फिर हम आके मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ इलाकों के बलूची मसाइल पे हम न मुत्तहिद है, न हमारी फिक्र उस हद तक चली जाती है। और यहाँ अक्सर शिकायत ये है कि बड़े जो हैं बेकार हैं। मेरे ख्याल में बड़ों में भी अक्स छोटों का और छोटों में अक्स बड़ों का। आज छोटे भी किसी लंबे चौड़े, किसी मुकम्मल अपने हक के जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में अमूमी ये ऊपर से आया या नीचे, यहाँ अक्सर सुनते हैं ऊपर नीचे दरवाजे खुले हैं हमारे, ऊपर नीचे से आ रहा है, नीचे ऊपर से जा रहा है। ये मेरे ख्याल में नीचे से भी ऊपर जा रहा है, ऊपर से भी नीचे आ रहा है, सब जैसे भी आ रहे हैं इस्लामाबाद के हक में जा रहे हैं। आज अगर आप इस किस्म की जद्दोजहद कहेंगे तो मेरे ख्याल में साथी ने जो फरमाया, या तो आपने क्या लफ्ज़ सरा सा उसके लिए इस्तेमाल किया, इंतहा पसंद या मंजूर, फिर या आपको इंतहा पसंद करेंगे या वो सावन के अंधे जैसे कहते थे, बंदूक के अंधे हैं, ये बड़ी बात करने वाले हैं। अमल तो नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश, लोगों को मरवाने की कोशिश। तो बात बलोची हक से शुरू होती है आके, भाई ठीक है जो नौकरी चाहता है, नौकरी मांगता है, वो नौकरी मांगे। कोई
कुछ तो ऐसे हो कि भाई नौकरी भी तुम्हारा हक है, लेकिन इस नौकरी के हक से कुछ और भी है। नौकरी के लिए कोशिश करो, रोजमर्रा अपनी जरूरतों के, तो मालिकी के लिए भी कोशिश करो। तो कौमी हक की भी कोई बात करे, या सब आके एक बलूचिस्तान या बलोच आबादी एक मजदूर कैंप बन जाए। हमें मजदूरी चाहिए जनाब, हमें कुछ एड, तरक्की, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है। यहाँ कौमियत का कहीं न छोटों से न बड़ों से, आया छोटे बड़ों की वजह से या बड़े छोटों की वजह से, बड़े यहाँ के या हमारे छोटे इस्लामाबाद के बड़ों के, सरहद के बड़ों के, और कुछ यहाँ के बड़ों के कायल हो गए हैं कि कौन जाने बाबा, जैसे पहले कहा करते थे कि बेवकूफ मरियों की बात करो महदूद, कि सरकारी लोग कहते हैं दिमाग तुम्हारा खराब है, ये खैर बख्श तो चरप रोटियां भी खाता है बाबा, उसको क्या फिक्र है, वो तो जेल और लड़ाई की बातें कर सकता है, क्योंकि वो बिस्तर भी उसका गर्म है, पंखा भी है, एयर कंडीशन भी है, पराठे भी हैं, वगैरह वगैरह, मोटर भी है। तुम बेवकूफो रात की अपने शाम के दिहाड़ी का फिक्र करो ताकि बच्चों के लिए रोटी ले जाओ। तो डंडे भी देखे लोगों ने, शायद ये भी अब पढ़ा है कि ऐसी बातों के पीछे न जाओ। शाम की दिहाड़ी की बात, महीने के बाद तनख्वाह की, तो मेरे ख्याल में इस मंडी में, हमारे मंडी में ये सिर्फ लफ्फाजी है, लोगों को भी पसंद। आप अगर यहाँ नौकरियों की, बहुत सारी नौकरियां आज हमारे साथी अगर कहते, मेरे ख्याल में तालियां बहुत ज्यादा बजती हैं। बलूचिस्तान की एक रस्म अपने को खुद फरेबी है। बलूच हक के लिए मेरे ख्याल में जाहिरदारी है, अलामतें। अब नौकरियों की कुछ तरक्याती स्कीम की बात करें, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे हम लोगों ने बैनुल अक़वामी सरमायादारी और उसके यहाँ एजेंट हमने कबूल किया है कि हमें मजदूर, लेकिन क्वार्टर हो हमारा, अस्पताल हो हमारा, सड़क हो, ट्रांसपोर्ट हो, हम जैसे हब के पैसे वाले कारखानादारों के मजूरी और चौकीदारी से हमने इत्तेफाक कर लिया है। मेरे ख्याल में अगर कोई चाहता है बहस दोनों आंखों से, मेरे ख्याल में बलोच एक दूसरे को बनाए नहीं, सिर्फ बहुत सारे हो कि किसी को ये कह के कि तुम गद्दार हो, बहुत हो भाई आपकी मर्जी है। वो हमारे बलोची का मिसाल है, बाज़ मर्द बोतारत, कि ज्यादा जो है अक्सरियत ताकत है, मतलब वो आका है, मालिक है। अगर बात कोई तज्जिया और तहकीक की हो तो शायद ऐसा नहीं। लोगों ने अंग्रेज से आके, अंग्रेज साम्राज्य से लेके आज तक, मेरे ख्याल में हम बलूची में अगर कहूँ, उर्दू में शायद मुझे वो सही नहीं, हम लाओ यानी डोमेस्टिकेटेड, हम नर्म हो गए हैं, कबूल कर लिए, मानूस हो गए हैं। वो अब आका है। अब थोड़ा बहुत भी गुस्सा आता है तो फिर या पठान या अपने बलोच पे थोड़ा सा गुस्सा आता है तो पठान सियाल है, काकड़, ये अरसे से कबाइल है, काशी है वगैरह, उस पे थोड़ा बहुत गुस्सा। तो वो ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा आता है तो फिर या अपने जैसे या अपने पड़ोसी पश्तून पे। वो कहता है जोराख कितना ज़हर दे दो, तो जोराख पे नहीं, उसको हमने अभी हाकिम मान लिया है, राज़िक मान लिया है, रिस्क देने वाला। तो ये आपस में अपने को बनाए नहीं कि सही गद्दार तू है। मेरे साथ अक्सर ये बहस चलता है, शायद सरदार साहब के, तुम लोगों ने हमें नहीं दिया, तुमने हमें रास्ता नहीं बताया, तुम लोग नहीं करते हो। भाई मुझे जरा आप बताइए, तुम हमारे रहबर हो। कभी कबायली तौर पे उनसे कह दो, मैं मरी आपका कैसा रहबर हूँ, रिवायती बात है। मैं कोई रिंद का निवासा हूँ, पसमानदा हूँ, मैं कहीं नूरी का निवासा हूँ, मैं तो रिंद थाली से दरे बेवा की मरी हूँ। रिवायती तौर पे मैं ऐसा रहबर नहीं हूँ। सियासी तौर पे कहें लीडर, नवाब अगर कहें नवाब भी, जाहिर है मेरा बहुत ज्यादा उसे कहचे। अब तो साबिका नवाब मरी का भी साबिका रह गया हूँ सरदार, लेकिन औरों का नहीं। सियासी तौर पे भी आप लोग कहते हैं कभी, तुम लोगों ने, तुमने, मुझे कौन सी किताब वो रिंद के
थमाए गए कि ये तुम्हारा विरसा है, या नूरी के थमाए गए कि ये विरसा है, या बाप दादा ने कहा कि सियासत पढ़ा के बचपन में छोड़ दिया कि भाई ये इल्म जो है हमारे घराने तक महदूद है। कौन सी किताब जो मेरे इजाजत के बगैर आपको नहीं मिल सकती, आप पढ़ना चाहते हैं, दुनिया में लोगों ने तहकीक की है, लिखा है, वो कौन सी चीज है? या सरदार नहीं छोड़ते? ये हम जो भाग गए भगोड़े, उसके बाद कौन थे यहाँ लीडर्स? नौजवान थे, तालिब इल्म थे, या बीएसओ जो अपने को कहते हैं, इस तरह के नौजवान थे। अब तो जितने सियासी मेरे ख्याल में ओहदेदार हैं उनसे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि एक किस्म से दरवाजे बंद किए हुए थे, वो सारा मवाद उठा के हम ले गए थे? मेरे ख्याल में काम करने तो हो सकता है कि या उनको रिवायती तौर पे ऐसे कबीले के बड़े ना हो, दूसरे ये है कि लोग उनका साथ नहीं देते, हमारा भी नहीं देते, ये सरदार का भी नहीं देते, उनका भी नहीं देते। अगर वो कहें कि गैस नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, अपना साहिल नहीं देंगे, तो शायद ये ख्याल है कि बेवकूफ कितने साल और हमें मेहनत करवाएगा, रात की रोटी पता नहीं कहां से आएगी, इसका तो पेट भरा है, या रूस से पढ़ के आया, फलानी जगह से आया, हमें तो अपनी दिहाड़ी चाहिए। चलो हम अपने को मजदूर तबका रोजाना करके, और बदकिस्मती है कि मजदूरी में भी अगर मजदूरी मेहनत पे हो तो बलोच उसमें भी किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। ये बाप दादे की मीरात है, थोड़ा सा उसके एवज में दलाली में या खामोशी में कुछ मिल रहा है। जब ताकतवर वो हो जाएंगे, ये डर नहीं रहेगा कि इनमें अभी चंगारी रहा ही नहीं है, हासिल कर सकेंगे, मुल्क छीन सकेंगे या नहीं, ये कम से कम यहाँ हमारे लिए खर्च का बायस नहीं बनेगा। झगड़ा ये एनईपी के दौर में हुआ, खुदा जाने दिन के करोड़ खर्च हो रहे थे, ये हो रहा था, फलान हो रहा था, तो ये नहीं होगा। कुछ इनके मुंह में डालते जाओ, मजदूरी ने कबूल किया तो हुजूर अंधेरा और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और ये अलफ लैला का किस्सा, एक कदम लो तो दूसरे कदम का ख्याल आता है, तो न जाने इसको इस तरह कदा काटना पड़ेगा या इसको इस तरह जारी रखे तो खासी देर चलती जाएगी। तो मेरे यहाँ ये भी इजहार और अरसे से होता रहा है। मेरी गुजारिश है कि ये न होने वाली चीजें नहीं है, हो सकती है, किस तरह हो सकती है, शायद इस सतह पे ना हो कि लाखों मेंबर हो। कहते हैं कि सब पार्टियों को इकट्ठे किया जाए, ये पार्टी शौकिया हुए हैं, कुछ समझ के, कुछ अगराज के, कुछ कमजोरियों की वजह से। जैसे मैंने अर्ज की कि अंग्रेज फौज के मुकाबले में अगर मरी जाते हैं तो उनका एक जहन है, वो उस जहन के साथ जाते हैं, लड़ते भी उस जहन के साथ है, और वो जहन को इस तरह की तरबियत समझ नहीं है जैसे अंग्रेज। तो यहाँ भी अगर ये लोग पार्टी जमा भी होंगे तो इनकी जहन आप कैसे बदलेंगे? जरूरत है इसकी या नहीं? जो ओहदेदार हैं, जिन्होंने गुरोह बनाए हुए हैं, जो जिस तरह इत्तेहाद करते हैं लोगों से, ये फौरन जहने बदलेंगे। अताउल्लाह साहब कोई पैगंबर है? पैगंबर जो आया तो भी खुदा का पैगाम लाया, तो लोगों ने क्या असर की थी? बस ऐसे बैठ के कह दिए जज्बाती तौर मेल मरका ले आओ हम एक पार्टी बनाए। तो वो समझ मौजूद है या नहीं? ये तजुर्बे से क्या परखना चाहिए किन में ये इस हद की पुख्तगी आई है। अगर वो रहबरी करेंगे, सबक देंगे, बहस करेंगे, वो कैसे लोगों को उठाएं? या जिसने आज कहा मैं पार्टी में शामिल हूं, लाखों में आए, न जाने तीसरे महीने में उसे ट्यूबवेल न मिला तो मुझे क्या पता था कि ये सब ऐसे लोग होंगे, इसने तो फिर वो अमीर के बच्चे को ट्यूबवेल दे दिया, मुझे तो नहीं दिया। मुझे आज पता लगा है कि ये बलोच दोस्त नहीं है। जैसे हम पे मार पड़ी तो फिर लोगों ने कहा हमें आज पता लगा कि ये गद्दार वतन थे, हम तो शामिल न होते इनके साथ। तो फिर कहीं ख्याल आएगा अरे अताउल्लाह तो मेंगल है, ये तो बलोच नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल मुझे नहीं दिया। कैसे परखा जाएगा? या खैर बस ने मई को दिया या फलाने को दे दिया, मुझे आज पता लगा इसकी बलोचियत का। तो आया हम ये जो अवाम कहते हैं, इनकी बलोचियत की भी परखने की जरूरत है, या चूंकि ये बहुत है इसलिए ये सच है, ये ताकत है चूंकि बहुत है,
या इनसे भी बहस हो सकता है कि हुजूर आप इस चीज को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, बहस तो कीजिए, इसका दलील दीजिए, इसका सबूत दे, इसकी हकीकत को जो है आप वो तस्लीम तो करवाएं, या जोर से तस्लीम करें। नहीं करोगे ये तो फिर हम डंडोरा तुम्हारे पीछे पीटेंगे। हाँ, डंडोरे के डर से ये है कि डंडोरा पीटोगे, फिर शायद इससे डर लगता है, किस किस्म का डर लगता है, क्या नुकसान आएगा। तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ हर एक अपने गरीबानों में झांक के, तो अगर ये पार्टी इत्तेहाद हो, इत्तेहाद किन किन की हो सकती है? इत्तेहाद एक लफ्ज है, या इत्तेहाद भी किसी तारीखी या जिंदगी के अमल, फिक्र, तहकीक का एक पुख्ता होने का मकाम है? कि आपने चावल को देगड़े में डाला और पानी भी डाल दिया और फिर कहा कि ये पका हुआ चावल है, या उसको जोश दे देंगे? तो यहाँ जो भी मेंबर बनेंगे आप ये कहेंगे कि उसमें वो सब नेशनलिस्ट है, कुछ उसका पैमाना फर्क भी है। ये कह दिया कि साहब या ऊपर से हमारा दरवाजे खुले हैं सारा वक्त। भैया आप शहनशाह है, कोई मुगल है जो आपके दरवाजे खुले हैं? आज तो अमेरिकन साम्राज्य भी इतना समझ रखता है कि मुझे जो लूटना है लोगों के, तो उसके पास कारिंदे मौजूद हैं। वो खुद शायद कारखाने का मालिक वहां हांगकांग नहीं जाता होगा, कारिंदे मौजूद हैं। तो आप एक फर्द की पार्टी है कि आपका दरवाजा खुला है, तो लिहाजा आपके दरबार में इंसाफ ही होगा। अगर कारिंदे हैं, सरदार का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, देखना ये है कि इसको परखा कैसे जाए। या यहाँ सादा लोगों के ये कह दिया हाँ वो तो ऊपर से फैसले होते हैं, उनके दरवाजे बंद हैं, वो 12 बजे उठते हैं। बाबा 12 बजे चाहे उठे, लेकिन तुम्हारा काम जो है रुका हुआ नहीं है किसी का, तो फिर उससे 12 बजे उठे या 2 बजे उठे, फिर 12 बजे रात सोता है या जो मर्जी। लेकिन हमारे सादा अवाम को इस तरह बहकाना मुश्किल नहीं है। मेरे बारे में मसलन अब अपनी दुख की कि किसी सोशलिस्ट बुजुर्ग ने हमारे कह दिया, मुझे पता था कि खैरपोश ये सफर हमारे साथ तय नहीं कर सकता। तो मैं कभी कभी पूछता हूं कि भैया आप बताएं कि काश वो बताया होता कि खैरबख्श में क्या खामी है। ये सरदार का बच्चा है, सरदार है, नरम रोटियां खाता है, नरम बिस्तर पे सोता है, सिपाही से परख रहे हैं। मुझ जैसे बेकार को तो छोड़े आप, यानी फौजी मरीज जो दिन के 50 मील सफर करता है और सूखी रोटी से गुजारा करता है वगैरह वगैरह, सर्दी चादर में ठिठर के अपना गुजारता है, इससे आप मुकाबला कर रहे हैं कि वो सफर नहीं कर सकता। अब मैं गलतफहमी में ना हो कि मैं ऐसे लोगों से अपने को बराबरी कर रहा हूं। दुनिया में कुछ रहबर थे, हम तो न रहबर हैं न वो लश्कर हैं, मैं मुझ जैसा कहीं भी नहीं है, लेकिन वो रहबर थे। अगर कहा जाए अब आम आदमी के सामने ये बात, जी हाँ ये तो सरदार है इसलिए ये वो सफर नहीं तय कर सकता, मैं तय कर सकती हूँ। क्या आपका जहन इतना ताकतवर है, आपका जिस्म इतना ताकतवर है, आपका दिल इतना ताकतवर है, या आपका पेट इतना ताकतवर है कि आप सूखी रोटी से भी बगैर कंबल की रात गुजार सकते हैं? खैरबश को जब तक वो जो है ये डक एंड डाउन ना हो, वो परिंदों के वो पर के जब तक न हो, खैरबश वो सर्दी नहीं कर सकता। किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ जो सियासत या तहरीक या तहकीक हुए हैं, ये मार्क्स वगैरह जैसे बुजुर्ग लोग, क्या ये मरीज थे जो 50 मील सफर दिन के करते थे? जहां शायद सिपाही बहक गए, वो अपने इरादे से मंजिल से नहीं हटे। ऐसी बातें यहाँ असर करते हैं जी। ये जो है ये सफर तय नहीं कर, नहीं चिपका हुआ है। मेरे ख्यालात ख्वाहिशात जो भी हैं, ये भी मेरे ख्याल में फिक्र में तब्दीली की जरूरत है कि सरदार अगर सब कौम दोस्त नहीं है, हर एक को ये सरदारी की वजह से कि मैं चूंकि 50 मील या मैं पहाड़ों में रहा हूं कुछ साल, बंदूक उठाया, मेरे ख्याल में संजीदा दुनिया में इल्म के या साइंस के ये सिर्फ पैमाना नहीं है कि कोई महाज में गया है तो वो अच्छा कारिंदा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, दूसरा किसी और दायरे में मैदान में। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी रिवायत थी जो कि मैं समझता हूँ आज के न नेशनलिज्म न सोशलिज्म कहें
उनमें बराबर नहीं आते। हमारे अपने यहाँ माहौल की कोई एक नौइयत है, अगर कहें एक गलती है, इस तरह लोगों को बहका के मिडिल क्लास पॉलिटिक्स ने किस दुनिया में या दुनिया में किस मुल्क में रहबरी की है, मुझे मालूम नहीं। हो सकता है मेरी लाइल्मी हो कि जहां भी हो अपर क्लास है, मुमकिन है मिडिल क्लास दरमियाना तबके को भी कुछ चीजें देते, तादाद उनका ज्यादा हो, लेकिन हावी ऊपर के हैं। और फिर उसमें कभी कहा जाता है हम लिबरल ख्यालात के हैं, मिडिल क्लास भी लिबरल भी। अब आप किसको बना रहे हैं या किसको सबक सिखा रहे हैं? तो ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी मेरे ख्याल में बहस और तहकीक की जरूरत है। बदकिस्मती से आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है बाबा हेडमास्टर बना हुआ है, तो मुझे भी खुद को एहसास कॉम्प्लेक्स के कहीं मास्टरों जैसे बैठ के सबक देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ जैसा जाहिल। तो लिहाजा आपकी मंशा हो, अगर कहें बस करो तो बस करो, अगर कहो कि चलते जाओ तो फिर चलते जाओ। किसी और वक्त चाहें वो आपकी मर्जी है, वरना मुझे धकेल के उठाया है, ना अपनी मर्जी से आया ना अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। जैसे आप कहें इजाजत दें तो आपकी मर्जी, कहें ठहरो बोलो हाजिर। मेरे ख्याल में एक रोज कहीं बदहजमी ना हो जाए तो सलाह हो तो कभी कभार निस्बतन छोटे छोटे नशिस्तों में तफसील से या हौसले से ऐसी बातें होती रहें, नहीं तो लंबी दास्तान है। एक वक्त आप भी शायद, मैं भी उठ पड़ा गलत बोलता जाऊं, आप भी उसे शायद जगह न दे सके, थक भी गए होंगे लोग। और मेरे ख्याल में ऐसी बातें इस काबिल नहीं समझी जाती हैं, शायद गलत हो या सही हो, पता नहीं, मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूं। ऐसी बातें कि हमारे अमूमी मिजाज से मुआफिकत नहीं रखते। हमने किसी हद तक इसको तोड़ना जरूरी है, इलाज ढूंढना है। जो इलाज हम अक्सर कह रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे उनसे कुछ इख्तलाफ जरूर है। कहाँ कहूँ, कब कहूँ, कितनों में कहूँ, ये इस तरह धकेल के कुछ अवामी ख्यालात, हर दिल अजीज दरमियाना ख्यालात जो है समझ के उसको कौम का सही नफ्ज बना के अक्कासी, मेरे ख्याल में कम से कम मुझ जैसा नाकिस आदमी का जी चाहता है कि मैं कभी बहस करता लोगों से। ये ऐसा नहीं है। तो ये कौमी सियासत कहें, नेशनलिस्ट सियासत, उसके लिए उसकी जरूरत है, लेकिन जो नुस्खे अक्सर पेश किए जा रहे हैं इन पे गौर करने की जरूरत है कि ये सही है या इनमें कुछ और तहकीक और इजाफा की जरूरत है। तो अगर इजाजत दें, मेरे ख्याल में लिहाज से कह नहीं रहे होंगे, कहते होंगे दिल से, जाओ जान छोड़ो हमारे। तो इजाजत है। मैं एक दफा फिर BNM के सरबराह फरजान मौली साहब, जामत मूवमेंट के गुल हसन मंजू और आप तमाम साथियों का जिन्होंने जहमत की, तालिब हुसैन साहब और दूसरे हमारे साथी आए हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े हौसले, और उससे मुझे अफसोस है कि हम चाहते थे कि सबको मौका मिले, लेकिन वक्त की कमी, और मैं ये चाहता था कि आपके आप साहब नाराज होंगे कि रहबर कह रहा हूँ, आपके रहबर आपसे बात करें। अरसे के बाद शायद ये नशिस्त हुआ है, और इंशाअल्लाह अगर हुआ, खुदा करे कि वो इससे बढ़कर आप लोग काम करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जहमत की और यहाँ तक तशरीफ लाए। और इसके बाद जो मेहमान हज़रात हैं वो थोड़ी देर के बाद फिर वो खाना खा